Gujarat has largest solar park in the India. Kerala has fully solar powered international airport. Goa has largest floating solar photovoltaic. पहला सेकंड हटाओ. ANC है क्या इसका आंसर? बी. ओनली 2. जिसको गलत समझा था वही हो गया. अरे तेरी. With reference to solar power production in India, consider the following statement. India has third largest in the world. 18 में पूछा है. In manufacturing of silicon wafer used. मतलब नहीं बनता. Solar power tariff are determined by the Solar Power Corporation of India. D. तो ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई क्या? ये डिटरमाइन करेगी टैरिफ को. हो गया सप्लीमेंट. With reference to technologies for solar power production, with reference to technologies for solar power production, consider photovoltaic is a technology that generates electricity to direct conversion of light into electricity, while solar thermal technology like sun rays to sunlight. पता नहीं भाई. ये ओनली 1. देखते हैं. इसी DC वाला मुझे नहीं पता भाई. पता करेंगे क्या सकता है इनका. This question might be seem difficult as all option as places, which often coupled by UPSC and is factual in nature. However, 2022 this question was on easier side. All the environment projects, especially solar power in Rajasthan and Cochin airport, were in news. Without asset knowledge, elimination question in this question is difficult. Bhadla solar power, world largest solar power. Bhadla, Rajasthan. Kerala Cochin airport is the first airport in the world that would be running fully on solar power, become fully powered by solar energy back in 2015, won 2018 much coveted champion on Earth Award, highest environmental honor granted by United Nations. Champion of Earth Award. अब एक UPSC बन जाएगा भाई. चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड कौन देता है? ये देता है यूनाइटेड नेशन. भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशन फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल लोकेटेड एट NTPC सिमहदरी आंध्र प्रदेश, बट नाउ फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन रामागुंडम तेलंगाना. India's largest floating solar power project launched by after UPSC. ये तो मुझे पता था कि गोवा का दूर दूर तक नाम नहीं है. गुजरात पर शक था. अगर हम गोवा को काट देते और गुजरात को भी काट देते केरला बचता. चलो. भदला सोलर पावर प्रोजेक्ट लार्जेस्ट है दुनिया में, जोधपुर में है. और गोवा और जो कोचिंग एयरपोर्ट है ये सोलर पावर से चलने वाला पहला एयरपोर्ट है. और इसने अर्थ चैम्पियन अवार्ड जीता है. और अर्थ चैम्पियन अवार्ड UN देता है. UN का सबसे बड़ा अवार्ड है इन्वायरमेंट के उससे. ठीक है. धोलेरा सोलर पावर प्रोजेक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विद एन अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ 5 gigawatt, डेवलप्ड under Gujarat hybrid renewable energy policy, integrated with solar wind hybrid project and green hydrogen production potential.
5 मेगावाट है, हाइब्रिड है, सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पोटेंशियल। उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड इन पुंगा वैली लद्दाख लेटर कंसिडर फॉर एक्सपेंशन इन उत्तराखंड। एक्सप्लेन हार्नेस जियोथर्मल रिजर्वायर फ्रॉम डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद टेक्निकल कोलेबोरेशन विद ONGC। अब पुंगा वैली चल रहा है, पुंगा वैली लद्दाख में होता है, बाकी उत्तराखंड में भी काम चल रहा है इसके लिए, बाकी तो है नहीं ONGC। अब टेक्निकल क्या काम है ONGC करती है। सेतु समंदरा ओशियन थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है। सेतु कहाँ बनाया गया था? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। वंस ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन सेतु समंदरा तमिलनाडु यूटिलाइजिंग टेम्परेचर बिटवीन surface and deep water yet to be implemented due to technological limitation and cost of concern despite being explorated by national ocean, ठीक है, डीप सी एनर्जी रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर built to supply power Indian Railway located Rewa, Madhya Pradesh, capacity of 750 megawatt, developed under Solar Energy Corporation of India. It is introduced competitive tariff bidding, reducing solar energy cost sufficiently. कुरनूल देख लेते भाई, ये कर लेते हैं। और ये रेलवे को सप्लाई पावर टू रेलवे। कुरनूल विंड सोलर हाइब्रिड पार्क, लार्ज स्केल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इंटीग्रेटेड विद सोलर विंड डेवलप्ड इन कुरनूल, आंध्र प्रदेश। सोलर और विंड है, जहाँ पर मेन उसमें सोलर विंड है गुजरात में। कहाँ पर है? धुलेरा नहीं, धुलेरा में है, बट उसमें वो भी मैटर है, उसमें पोटेंशियल है ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने का। पार्ट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल हाइब्रिड कुरनूल, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल हाइब्रिड पॉलिसी इंक्लूड स्टेबिलिटी एंड लैंड ऑप्टिमल लैंड यूटिलाइजेशन फॉर मल्टीपल ईयर्स। लेह कारगिल सोलर प्रोजेक्ट, हाई एल्टीट्यूड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन लेह एंड कारगिल लद्दाख प्लान टू। ये भी बड़ा है यार, 750 गीगावाट, ये 750 गीगावाट से बहुत ज़्यादा है। गुजरात हाइब्रिड एम टू रिड्यूस लद्दाख। गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्पेनिंग 40,000 हेक्टेयर। खाड़वा कच्छ गुजरात इंटीग्रेटेड सोलर विंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। गुजरात में 3 काम चल रहे हैं, ग्रीन विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन, डेवलप्ड अंडर गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। धुलेरा में वो है, गुजरात में है धुलेरा वाला, 5 गीगावाट है। उससे ज़्यादा तो लद्दाख में ही है, लद्दाख में सोलर है। लद्दाख में हाइब्रिड नहीं है, लद्दाख में वही है सोलर, 7.5 गीगावाट है ना। देन एक फिर ये तुम्हारा गुजरात वाला है, कच्छ वाला, गुजरात हाइब्रिड एनर्जी पार्क 30,000 हेक्टेयर का है, कच्छ में है। और तुम्हारा ये भी हाइब्रिड है, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की पोटेंशियल है। फिर उसके बाद तुम्हारा ये सेतु समंदरा तमिलनाडु में है, ये जियोथर्मल ओशियन थर्मल है, ये डिफेंस से बनाया जाएगा, अभी काम चालू नहीं हुआ। उसके बाद भल्दरा जोधपुर में है, ये हो गया। उत्तराखंड का जियोथर्मल है ना, ये पेंगू वैली लद्दाख में है पहले, और इसे ONGC सपोर्ट कर रहा है। देन रीवा अल्ट्रा मेगा, ये 750 मेगावाट का है, 750 मेगावाट का। ये इसे वो दे रहा है सपोर्ट, क्या बोलते हैं, रेलवे लाइन को पानी देगा। और इसे कोल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है। कुरनूल
विंड सोलर हाइब्रिड पार्क आंध्र प्रदेश में है। इंटीग्रेटिंग सोलर विंड पावर डेवलप इन कुरनूल। ठीक है। ले भाई रख दिया अब तो कुछ। कार्बन टेक अवे ऑब्लिगेशन कंपनी होती है, कंपनी पे ऑब्लिगेशन होती है। CTBO इज प्रोसेस पॉलिसी दैट मैंडेट फॉसिल फ्यूल कंपनी टू परमानेंटली स्टोर एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CO2 एवरी टन एक्सट्रैक्टेड। फुल लाइफ साइकिल कार्बन अकाउंटेबिलिटी कार्बन लॉकिंग इफेक्ट होता है। मतलब एक देश पूरी तरह फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज़ के लॉन्ग रन में फंस जाता है। उसके लिए उस रास्ते पर निकलना बहुत मुश्किल होता है। डिकार्बनाइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है। क्लाइमेट शैडो एक कंपनी भाई प्लान बनाती है फ्यूचर में होने वाले क्लाइमेट टैक्स का, है ना। मतलब एक कंपनी मेजरफुल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इंडिविजुअल लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग कंजम्पशन पैटर्न करियर डिस्कशन सोशल इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल एक्टिविटी ग्रीन रिलेशन। ठीक है। शैडो कार्बन प्राइसिंग वो शैडो कार्बन प्राइसिंग है। इंटरनल कॉर्पोरेट टेरिटी टू असाइनिंग आईपो पोटेंशियल कार्बन प्राइसिंग टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू फ्यूचर कार्बन टैक्सेस एमिशन ट्रेडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी बोर्ड प्लानिटरी बाउंड्रीज 9 वो हैं जिससे वो मतलब कुछ भी अनस्टेबल हो जाएगी। ग्रीन पैराडॉक्स ये होता है कि भैया बाद में हो जाएगा तो वो अभी साला खर्च करो। फ्यूचर कार्बन रेगुलेशन में टुडे एज सेल्फ रिजर्व लॉ कार्बन मतलब ऑफसेटिंग का ऑफसेटिंग बात करते हैं। सेटिंग में पता चल रहा है सोशल कॉस्ट होती है कि भाई अपने पर मेट्रिक टन से आपको कितना नुकसान हुआ, कितना हेल्थ इम्पैक्ट हुआ। कार्बन लीकेज और टूरबेन कंपनी से प्रोडक्शन। ठीक है, ये भी आसान है। कार्बन फार्मिंग के बारे में पता है। इको एंजाइटी टिपिंग पॉइंट में एशियन अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या है। धारा है वो मध्य सागर के उत्तर में गर्म पानी लेके जाती है, वहाँ पर गर्मी पैदा करती है। पोलर एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा जल्दी से गर्म हो रहे हैं। रेडियो एक्टिव फोल्ड वो एविएशन एमिशन हैविंग हायर ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड रीजन। RFI मेजर रिलेटिवली इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस और ह्यूमन एक्टिविटी कंपेयर टू CO2 पर यूनिट एमिशन। ग्रीन जॉब एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर CABM कार्बन लीकेज को रोकने के लिए है और कॉम्पिटिशन देने के लिए है ना। इको साइड को अभी बात हो रही है लेकिन अभी क्राइम नहीं है। ये कार्बन कैप्चर ब्लू ओशियन और ये लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय 1 टन इन अ गिवन ईयर। ठीक है, थैंक यू। और एक दो बार कर लें, उसके बाद नया ही शुरू कर देंगे ना।